Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fazil 2 Model College for Girls. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. For the students of class 6, our subject is computer and lecture number 8. Students, in the previous lecture, we already completed the chapter number 5. Today we are going to discuss the exercise of chapter number 5. Students, in chapter number 5, we discussed how many types of number system exist. And students, you know there are 4 types of number systems: binary number system, decimal number system, hexadecimal number system, and octal number system. And in binary number system, we only use two numbers or two numerals, that is 0 and 1. Then in decimal number system, we have 10 numerals start from 0 to 9. Then octal number system, the base of octal number system is 8, which means it have 8 numbers start from 0 to 7. Then hexadecimal number system, which contains 16 number start from 0 to 9 and then A to F. Students, then we discussed binary number system, that in binary number system we use bit and byte, and 0 and 1 individually known as bit, and the combination of 8 bits is known as byte. Then students, हमने भी डिस्कस किया था how to convert the numbers from binary number system to decimal number system, and how to convert decimal number system into बाइनरी नंबर सिस्टम, कि कैसे हम किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम को में जो हम नंबर लिखते हैं उनको कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, come to the exercise of chapter number 5. Question 1, fill in the blanks using correct words. Number 1, we use dash for counting different things. So students, the answer is number system. We use number system for counting different things. Number 2, radix is the dash of the number system. Radix is the base of number system. Number 3, the base of the hexadecimal number system is dash. The base of the hexadecimal number system is 16. Okay. Number 4, the base of the decimal number system is dash. The base of the decimal number system is 10. Number 5, the base of the octal number system is 8. Number 6, the base of the binary number system is 2. Number 7, binary number system has dash numerals. Binary number system has 2 numerals. Number 8, 1024 kilobyte is equals to 1 megabyte. Number 9, dash is equal to 1 GB or 1 gigabyte. 1024 MB is equal to 1 gigabyte. Number 10, GB is stand for gigabyte. Number 11, a bit stands for binary digit. Number 12, the combination of 8 bits is called byte. Number 13, dash is a symbol for on and dash is a symbol of off. In the dash
number system. So the answer is 1 is a symbol for on and 0 is a symbol of off in the binary number system. Then students, question 1 part B. Write whether the statement is true or false. Number 1. Computers use hexadecimal number system to store data. Answer is false. Students, computer use binary number system to store data. Students, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, जीरोज एंड वन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है हमारा कंप्यूटर, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ नहीं करता डाटा स्टोर करने के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नंबर 2, द रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 16. This is also a false statement because the radix of octal number system is 8. Number 3, 8 bytes form a bit. It is also a false statement because 8 bits form a byte. Number 4, bits do not store data when they are off. False statement because bits store data when they are off. Means कि जब भी हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो ऑन एंड ऑफ डाटा को स्टोर किया जा रहा होता है. ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0 डिजिट. सो डाटा जो है ऑन एंड ऑफ स्टोर हो रहा होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. नंबर 5, each 0 or 1 in a decimal system is called a bit. So students, this is false statement because 0 and 1 is used as a bit in the binary number system. Number 6, the combination of 1024 gigabyte is called a kilobyte. So this statement is false because the combination of 1024 byte is called a kilobyte. Students, from your exercise, question number 5, convert the following figures from binary to decimal number system. Students, in the प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको मेथड बताया था कैसे हम किसी भी फिगर को या किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसको हम 1 बाय 1, हमारे पास ये 5 पार्ट्स हैं, इन 1 बाय 1 इन 5 पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इन पार्ट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक पे करना है, सॉल्व करना है. स्टार्ट करते हैं. 1 1 0 1 1 0, 1 1 0 1 1 0. स्टूडेंट्स, हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि ये कैसे हम जो है 1 1 0 1 0 1 1 0 को कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. अब इनको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है ये मैं आपको मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगेन आपने इसी तरह अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने बुक का मेथड डिस्कस किया था कि बुक वालों ने किस तरह एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रही हूँ कि कैसे हम किसी भी नंबर को बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ईजीएस्ट मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ और यही मेथड आपने यूज़ करके अपनी नीट बुक पे ये आपने क्वेश्चंस राइट करने हैं. नीट नोटबुक पे आपने ये क्वेश्चंस राइट करने हैं. स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन, देन पैरेंथेसिस 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 1 डिजिट से और हम इसको 1 ईच डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और देन फिर हम उसके ऊपर वेट 2 के ऊपर जो है वो हम वेट अप्लाई करेंगे. 2 के ऊपर रेस्ट पावर जो हम डिफरेंट हमारे पास डिजिट्स हैं वो राइट करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपने
पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप ये लिखेंगे इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस पैरेंथेसिस 1 मल्टीप्लाई 2 पैरेंथेसिस प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट्स ये राइट करने के बाद आप लोगों ने फिर 2 के ऊपर आपने वेट्स अप्लाई करना स्टार्ट करना है। और मैंने आपको सिखाया था कि राइट साइड से हम वेट अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड में हमारे पास 0 है, तो 0 से स्टार्ट हमारे पास जो 0 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5। ये हम लिखेंगे। 2 को हम पहले लिख चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2, ये हम पहले से मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद आपने पावर्स लिखना स्टार्ट कर देना है और स्टार्ट करना है राइट टू लेफ्ट। हम पावर राइट करना स्टार्ट करेंगे 2 के ऊपर। और देन अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 1 हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई एज इट इज़, और ये 2 रेज़ टू पावर 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है। तो 2 रेज़ टू पावर 5 आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 को 5 टाइम्स लिखोगे तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 32। देन आप फिर नेक्स्ट क्या करोगे, इन तमाम डिजिट्स को सॉल्व करते जाओगे। इनकी जो 2 रेज़ टू पावर के ऊपर जितने भी वेट है उससे आपको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने टाइम्स, और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें अब 2 रेज़ टू पावर 4 स्टूडेंट 16 होता है, इसलिए 2 रेज़ टू पावर 4 की जगह मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करा है, 16। तो 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, 8। तो हम यहाँ पे मेंशन करें 0 मल्टीप्लाई 8। देन 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 स्टूडेंट्स क्या होता है, 4, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 मेंशन कर दिया है। और 1 एज इट इज़ लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ हम लिखेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। द 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम मेंशन करें 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 32। हमारे पास अब ये 32 कैसे आया, 32 1 जा 32 और 1 मल्टीप्लाई 32 इक्वल्स टू 32। प्लस का साइन आप देख सकते हैं क्योंकि अब पैरेंथेसिस को हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब लास्ट हमारा स्टेप है कि ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं इनको आपस में ऐड करना है। तो 16 1 जा 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 4, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 0। 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 54। देन लास्ट स्टेप जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने इसको राइट कैसे करेंगे, तो हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे 1 1 0 1 1 0 और बेस मेंशन करेंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में ये नंबर लिखा गया है इसलिए इसकी बेस 2 है, इक्वल्स टू कि ये जो नंबर है ये इक्वल है 54 नंबर से जो कि हमने किस में लिखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है और उसकी बेस क्या है, 10 है। देन स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 1 0 1 1 0 1 इक्वल्स टू, देन अगेन हम राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब हम पैरेंथेसिस क्यों लगा रहे हैं, कि हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर सके, देन हम लास्ट में एडिशन कर सके नंबर्स को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमने ये नंबर्स को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर एक डिजिट को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड से हम 2 के ऊपर पावर्स लिखना स्टार्ट करेंगे या 2 के ऊपर वेट लगाना अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देन हम किस तरह लिखेंगे कि 2 रेज़ टू पावर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास 32 होता है।
तो यहाँ पे हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। देन हम पहले जो हमारे पास ब्रैकेट होते हैं या पैरेंथेसिस होते हैं उनमें जो भी नंबर अंदर मेंशन होते हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। तो देन 1 मल्टीप्लाई 32 इज 32, 0 मल्टीप्लाई 16 0 मल्टीप्लाई 16 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8, 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4, 0 मल्टीप्लाई 2 is 0, 1 multiply 1 is 1. So we can write this in this form equals to 32 plus 0 plus 8 plus 4 plus 0 plus 1 equals to 45. इनको प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो आंसर इज 45. Then write 101101 with the base of 2 is equal to 45, and 45 number is written in decimal number system with the base of 10, which represent that this is 45 is number in decimal number system which is equivalent to 101101. Part 3, 011011 equals to 0 multiply 2 plus 1 multiply 2 plus 1 multiply 2, 0 multiply 2, 1 multiply 2, 1 multiply 2. स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले कहती हूँ आपको कि आप हर डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। देन मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ कि हम राइट साइड से पावर लिखना स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये सबसे आपके लिए आसान मेथड ये होगा कि आप इसी तरह इन्हीं स्टेप को फॉलो करें और सबसे पहले हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप उसको राइट करें और उसको पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में अलग से मेंशन कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब आप ब्रैकेट में हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिख देंगे, मल्टीप्लाई भी करना नहीं है, अब सिर्फ राइट करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिर्फ अभी लिख रहे हैं, देन आपने लिखने के बाद साथ ही हम 2 के ऊपर वेट्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हम सबसे पहले जो हमारे पास 2 के ऊपर जो वेट्स लगे हैं पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। मीन्स 2⁵ को पहले सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम 2⁴ को सॉल्व करेंगे, देन 2⁵ को, देन 2⁵2 को, देन 2⁵1 को एंड देन 2⁵0 को हम सॉल्व करते हैं। जब हम 2⁵5 सॉल्व करते हैं तो 32 आंसर आता है। जब हम 2⁵4 सॉल्व करते हैं तो 16 आंसर आता है। और इसी तरह जब हम 2⁵3 सॉल्व करते हैं तो आंसर 8 आता है। देन 2⁵2 को सॉल्व करते हैं तो 4 आंसर आता है। इसी तरह 2⁵1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2⁵0 इक्वल्स टू 1। जब हम पावर्स को सॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है, लाइक 32 हमारा जो नंबर आया है, इसको हम अब फर्दर उन डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें नंबर गिवन थे। लाइक अब ये 0 एक डिजिट है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते जाएंगे अपना आंसर। देन जब हम ये तमाम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एडिशन करते हैं जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, लाइक 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1। देन हम अब उसको ऐड करेंगे और ऐड करके हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। Like in this case the answer is 27 which is equals to 011011। तो ये हमने इस तरह इसको सॉल्व कर लिया है। देन हम पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 इज 111110। इसको हमने ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें नंबर गिवन है, इसको अगेन हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और सेम मेथड जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 3 पार्ट्स को हमने जो भी अभी सॉल्व किया है उसी तरह हमने इस पार्ट को भी सॉल्व करना है उन्हीं मेथड्स को फॉलो करके। इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 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 0 मल्टीप्लाई 2। अब मैं बार बार पैरेंथेसिस नहीं बोल रही है, मैं ब्रैकेट्स का वर्ड यूज़ नहीं कर रही क्योंकि आप देख सकती हो कि हमने इस ब्रैकेट को मेंशन करना है। ठीक है, आपने अब क्या करना है, अगले स्टेप में 2⁵5 को सॉल्व कर देना है, देन 2⁵4 को एंड देन 2⁵3 एंड अप टू सो ऑन। Equals to 1 multiply 32 plus 1 multiply 16 plus 1 multiply 8 plus 1 multiply 4
plus 1 multiply 2 plus 0 multiply 1. Then equals to 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 0, and the answer is 62. 1 1 1 1 1 0 base 2 equals to 62 in decimal number system. The last part of this question is 10001 equals to 1 multiply 2 plus 0 multiply 2 plus 0 multiply 2 plus 0 multiply 2 plus 1 multiply 2. और जिस तरह ब्रैकेट्स मैंने मेंशन किए हैं, पैरेंथेसिस मेंशन किया, आपने वैसे ही करना है. और सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आपने इक्वल्स टू का साइन ज़रूर यूज़ करना है. देन स्टूडेंट्स 1 multiply 16 plus 0 multiply 8 plus 0 multiply 4 plus 0 multiply 2 plus 1 multiply 1 equals to 16 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1. आप कहेंगे ये 3 zeros कहाँ से आए? तो 0 8 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1 होता है. इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 17, which means 10001 is equals to 17 number in decimal number system. Students, for your homework activity, you have to practice of these figures on your rough notebook, and you have to try to convert the figures from binary number system to decimal number system. So for your homework activity is question for you: convert the following figures from binary to decimal number system. Part 1 1011. इस नंबर को आपने बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है. जो आज मैंने आपको मेथड ईजीएस्ट मेथड आपको बताया है, उस मेथड को आपने फॉलो करके आपने रफ नोटबुक पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. और एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वो आपने अपनी नीट नोटबुक पर करना है. Part 2 is 0011 and the part 3 is 101. Students, I hope you understand the lecture. Students, revise this lesson and also complete your exercise and write question number 5 on your neat notebook and practice this question on your rough notebook. Thank you. Have a nice day.